reactions. And when I am telling about common types of organic reaction, तो बहुत सारे reactions है organic के, substitution है, condensation है, pericyclic है, addition है, rearrangement है, disproportionation reaction, etc., etc. So many types of reaction. But we will first study, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, वो है substitution reaction. अब जैसे मैंने आपको substitution reaction के बारे में पहले बताया कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें which involves the replacement of one atom or a particular group of atom by another atom or another group of atom, and that is commonly called as substitution reaction. एक खास बात substitution reaction की क्या है? That there is no particular change in the remaining part of the molecule. पूरे molecule में किसी भी तरह का कोई change नहीं होता है. Is this clear? Right? है ना? अब nature of the, देखिए substitution reaction में जो सबसे important होता है वो होता है nature of the attacking species. It can be nucleophilic, it can be electrophilic, it can be free radical. तीनों में से कोई एक हो सकता है. I repeat, it can be nucleophilic, इलेक्ट्रोफिलिक या फ्री रेडिकल, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है. एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात भी करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, so obviously such type of reactions which are brought about by nucleophiles. What which are brought about by nucleophiles. So nucleophiles में क्या होता है? एक stronger nucleophile एक weaker nucleophile को displace कर देता है. Right? तो जैसे मैंने एक छोटा सा example लिया, HO negative plus RX, that is alkyl halide. ठीक है? तो ये obviously this is a stronger nucleophile. What it is? This is a stronger nucleophile and it will attack alkyl halide, clear? And obviously, and what it will give you? क्या देगा ये आपको? बोलते जाइए. RO plus X negative. तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया और ये बन गया आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल. ये क्या बन गया आपका? Yes, this becomes a weaker nucleophile and this becomes the product, that is alcohol. And this product is actually the output of substitution reaction. Clear? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि mechanism of nucleophilic substitution reaction की अगर हम लोग बात करें, if we talk about the mechanism of nucleophilic substitution reaction, so there are two types of substitution reactions, nucleophilic substitution reaction. One is SN2 substitution nucleophilic bimolecular, and another one is SN1 substitution nucleophilic unimolecular. तो दो तरीके के हमारे पास में reactions हैं. अगर nucleophilic substitution reaction देखेंगे तो we have the two types of nucleophilic substitution reaction. One is SN2 and another one is SN1. We will study about, there are two types of nucleophilic substitution reaction. One is SN2 and another one is SN1. हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे SN1 substitution nucleophilic bimolecular. एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन प्लस मिथाइल क्लोराइड, that is CH3Cl. So we will take a reaction, substitution reaction, hydroxyl ion. This hydroxyl ion is actually incoming nucleophile. ठीक है? ये hydroxyl ion क्या है? एक तरीके से incoming nucleophile है. और ये hydroxyl ion जो है, मिथाइल क्लोराइड और hydroxyl ion का मैं रिएक्शन लेता हूँ और ये आपस में मिलकर के आपको क्या दे रहा है? अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो ये आपस में मिलकर के आपको दे रहा है. सबसे पहले याद रखिएगा, इसके मैकेनिज्म को मैं आपको पूरे डिटेल में बाद में समझाऊंगा. सबसे पहले ये ट्रांजिशन स्टेट में आएगा. ट्रांजिशन स्टेट में आया मतलब क्या हो गया? ये
ठीक है, ये सबसे पहले अपने ट्रांजिशन स्टेट मतलब संक्रमण अवस्था, मतलब ये अभी फाइनली अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट कैसे बनाएगा ये, ऑब्वियसली उसके बाद ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, और साथ में निकलेगा Cl नेगेटिव, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो Cl नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, यस, इसको हम बोलते हैं आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल। तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बना आपका, मिथेनॉल बना यहाँ पे, दिस मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल इज एक्चुअली योर प्रोडक्ट। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, इस पूरे रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पूरा रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। दिस एंटायर रिएक्शन फॉलोज, अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स वाला जो लेसन पढ़ाऊंगा उसमें ये समझाऊंगा, बट ये फॉलो करता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस कंप्लीटली फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है, दोनों, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, इसके कंसंट्रेशन के ऊपर में। इसको याद रखिए, सेकेंड ऑर्डर मतलब व्हाट इट सेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन the concentration of both the reactants. Clear? ये rate of reaction किसके ऊपर में डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब it depends upon the concentration of both the reactants. ये दोनों reactants के concentration के ऊपर में reactant, I mean जो rate है वो डिपेंड करता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं in different way, रेट अगर आप देखेंगे, फाइंड दैट रेट इज इक्वल टू के ऑफ कौन कौन सा, CH3, Cl एंड OH। क्लियर? तो रेट इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, दैट इज CH3, Cl एंड OH नेगेटिव। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो रेट इसके ऊपर में डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर? राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट अलग अलग करके कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं। मतलब पहले ये रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? राइट? इस रिएक्शन की एक और खास बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के जितने भी SN2 रिएक्शंस हैं, दुनिया के जितने भी SN2 रिएक्शंस हैं, वो हमेशा पीछे से होते हैं, याद रखेंगे। तो ऑल द SN2 रिएक्शंस दे ऑलवेज अकर फ्रॉम द बैक साइड। इज दिस क्लियर? राइट? है ना? और दूसरी चीज क्या है, जैसे ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बना के देखिए, जैसे ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड को अप्रोच करता है तो वो उसके साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। क्लियर? और वो सबसे पहले क्या करता है, देखिए, वो सबसे पहले ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये अटैक किया और सबसे पहले किसको ब्रेक किया, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। इज दिस क्लियर? और ब्रेक करने के बाद क्या कर दिया, उसको तो निकाल करके अलग कर दिया और खुद किसके साथ में चिपक गया, OH के साथ। हैलोजन को, हैलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन को क्या किया, निकाल करके अलग कर दिया और खुद किसके साथ में ऐड हो गया, OH के साथ में। खुद किसके साथ में ऐड हुआ, OH के साथ में। Am I clear to or not? है ना? तो ये चीज याद रखो बेटा, एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, CCl का बॉन्ड टूट रहा है और एक तरफ COH का बॉन्ड बन रहा है। ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, और ये दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक हो रहा है। और ये अटैक क्योंकि पीछे से होता है। क्लियर?
और ये याद रखेंगे, इस चीज में और एक बात है, जितने भी दुनिया के SN2 रिएक्शन है वो सब के सब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दुनिया के जितने भी SN2 रिएक्शन है वो सब के सब एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। इज दिस क्लियर? एक स्टेप में होते हैं। इज दिस क्लियर? राइट, है ना? और याद रखिए ये बीच में इंटरमीडिएट नहीं बनाता, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वो बीच में प्रोडक्ट बनाने की स्थिति में आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, जैसा मैंने आपको बताया था। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड है। क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में एक दूसरे से पार्टली बॉन्डेड है। क्यों बॉन्डेड है? ताकि आगे जाके वो क्या बना सके? प्रोडक्ट बना सके और आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल बना सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन एटम, देखिए कार्बन एटम 5 अलग अलग एटम से बॉन्डेड है, 1 2 3 4 5। तो ट्रांजिशन स्टेट की एक और खास बात क्या है? कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 5 डिफरेंट एटम्स। कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 5 डिफरेंट एटम्स ट्रांजिशन स्टेट में। इज दिस क्लियर? राइट, है ना? और अल्टीमेटली यहां पे ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अस्थायी है। वो स्टेबल कब बनेगा? जब वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। वो स्टेबल कब होगा? जब वो प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। क्लियर? और एक और चीज जो मैंने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था आपको? कि SN2 रिएक्शन में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां से करता है? बैक साइड से। हमेशा कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से। इज दिस क्लियर? और जो बाहर निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, वो सामने से बाहर निकल रहा है। अटैक पीछे से हो रहा है, लेकिन आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल कहां से रिलीज हो रहा है? वो सामने से रिलीज हो रहा है। ये चीज सबको याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। इसीलिए SN2 रिएक्शन को एक वर्ड बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इज दिस क्लियर? या इसको हम लोग केमिस्ट्री में वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसको हम लोग केमिस्ट्री में वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। वॉल्डन इन्वर्जन क्या है? जैसे आप कहीं बरसात में जा रहे हैं, देखिए ये आपके पास में छतरी है, आप बरसात में जा रहे हैं, अचानक तेज हवा आई तो ये छतरी कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे भी हुई है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा था, लेकिन यहाँ आकर के क्या हो गया? जस्ट उल्टा हो गया। ये देखिए ना, CCl था और H तीनों कहाँ था? इस तरफ था, पर यहाँ आकर के H कहाँ चला गया? इधर लेफ्ट साइड में था, पर इधर कहाँ गया? राइट साइड। वैसे ही जैसे छतरी बरसात में ऐसा रखते हैं हम, और हवा आती है तो क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, और इसको आम भाषा में बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यही इसी को हम बोलते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।